ସ୍ୱାଗତମ୍ ପିଲାମାନେ ଆମ ଚାଟଶାଳୀର ଆଉ ଏକ ଭିଡ଼ିଓକୁ ତୁମମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ। ଆଜି ଆମେ କ୍ଷେତ୍ରଫଳ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ପ୍ରଶ୍ନଗୁଡ଼ିକର ସମାଧାନ କରିବା ଏବଂ ଏହାର ଉତ୍ତର ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରିବା। ଆଜିର ଆମର ପ୍ରଥମ ପ୍ରଶ୍ନ, 25 ମିଟର ଦୈର୍ଘ୍ୟ ବିଶିଷ୍ଟ ଏକ ଆୟତାକୃତି ଉଦ୍ୟାନର କ୍ଷେତ୍ରଫଳ 300 ବର୍ଗମିଟର। ଏହି ଉଦ୍ୟାନର ପ୍ରସ୍ଥ କେତେ? ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଏହାର ଉତ୍ତର କାଢ଼ିବା। ଦେଖ ପିଲାମାନେ, ଏଠାରେ ଆୟତାକୃତି କ୍ଷେତ୍ରର ଦୈର୍ଘ୍ୟ ଆମକୁ ସିଏ ଦେଇଦେଇଛି ଏବଂ ତା ସହିତ ଆମକୁ କ୍ଷେତ୍ରଫଳ ମଧ୍ୟ ଜଣାଅଛି। ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ପ୍ରସ୍ଥ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରିବା। ତ ଆମେ ଏଠି ଲେଖିଦେବା, ଆୟତାକୃତି କ୍ଷେତ୍ରର ଦୈର୍ଘ୍ୟ ହେଉଛି 25 ମିଟର, କ୍ଷେତ୍ରଫଳ ସମାନ 300 ବର୍ଗ ମିଟର। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ପ୍ରସ୍ଥର ସୂତ୍ର ପକାଇବା, ଯାହାକି ହେଉଛି କ୍ଷେତ୍ରଫଳ ବିଭକ୍ତକ ଦୈର୍ଘ୍ୟ। ଏହି ସୂତ୍ରଟି ପ୍ରଥମେ ଆମେ ଏଠାରେ ଲେଖିନେବା, ପ୍ରସ୍ଥ ସମାନ କ୍ଷେତ୍ରଫଳ ବିଭକ୍ତକ ଦୈର୍ଘ୍ୟ। କ୍ଷେତ୍ରଫଳ ଜାଗାରେ ଆମେ 300 ବର୍ଗ ମିଟର ଲିଖିଦେଲେ, ବିଭକ୍ତ ଦୈର୍ଘ୍ୟ ସ୍ଥାନରେ ଦୈର୍ଘ୍ୟର ମାପ 25 ମିଟର ଲିଖିଦେଲେ। ବର୍ତ୍ତମାନ 300 ଏବଂ 25କୁ କାଟିଦେବା, 25କେ 25, 25 ଦୁଣେ 50, ହୋଇଗଲା 12 ମିଟର। ତାହେଲେ ଏଠାରେ ଆମର ପ୍ରସ୍ଥ ନିର୍ଣ୍ଣୟ ହୋଇପାରିଲା, ଯାହାକି ହେଉଛି 12 ମିଟର। ଅତଏବ ଦେଇକି ଆମେ ଏଠାରେ ଲେଖିନେବା, ଆୟତାକୃତି କ୍ଷେତ୍ରର ପ୍ରସ୍ଥ 12 ମିଟର। ବର୍ତ୍ତମାନ ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, 2 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ, 500 ମିଟର ଦୈର୍ଘ୍ୟ ଓ 200 ମିଟର ପ୍ରସ୍ଥ ବିଶିଷ୍ଟ ଗୋଟିଏ ଆୟତାକୃତି ଜମିରେ ଟାଇଲ ବିଛାଇବା ପାଇଁ ପ୍ରତି ବର୍ଗ ମିଟରକୁ 5 ଟଙ୍କା ହାରରେ କେତେ ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ ହେବ? ଆସ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏହାର ଉତ୍ତର ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରିବା। ପ୍ରଶ୍ନରୁ ଆମେ ଜାଣିଲେ ଯେ ଆୟତାକାର ଜମିର ଦୈର୍ଘ୍ୟ 500 ମିଟର ଏବଂ ପ୍ରସ୍ଥ ହେଉଛି 200 ମିଟର। ତେଣୁ ଏହି ଦୈର୍ଘ୍ୟ ଏବଂ ପ୍ରସ୍ଥକୁ ବ୍ୟବହାର କରି ଆମେ କ୍ଷେତ୍ରଫଳ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରିପାରିବା। ତ ପ୍ରଥମେ ଆମେ କ୍ଷେତ୍ରଫଳଟି ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରିବା। ତ ପ୍ରଥମେ ଆମେ ଏଠାରେ ଲେଖିଦେଲେ, ଆୟତାକାର ଜମିର ଦୈର୍ଘ୍ୟ ସମାନ 500 ମିଟର, ପ୍ରସ୍ଥ ସମାନ 200 ମିଟର। ଏହାର କ୍ଷେତ୍ରଫଳ ସୂତ୍ର ପକାଇଦେବା, ଦୈର୍ଘ୍ୟ ଗୁଣନ ପ୍ରସ୍ଥ ସମାନ ଦୈର୍ଘ୍ୟ 500 ମିଟର ଗୁଣନ ପ୍ରସ୍ଥ 200 ମିଟର। ବର୍ତ୍ତମାନ 500 ମିଟର ଏବଂ 200 ମିଟରକୁ ଆମେ ଗୁଣନ କରିଦେବା। ଗୁଣନ କରିବା ପରେ ଏଠାରେ ଗୁଣଫଳ ହେଉଛି 1 ଲକ୍ଷ ବର୍ଗ ମିଟର। ବର୍ତ୍ତମାନ ସିଏ ଦ୍ୱିତୀୟ ଭାଗରେ କହିଛି ଯେ ଏହି ଆୟତାକାର ଜମିରେ ଟାଇଲ ବିଛାଯିବ ଆଉ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବର୍ଗ ମିଟର ଟାଇଲ ବିଛାଇବା ପାଇଁ ଆମର 5 ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ ହେବ। ଆୟତାକାର ଜମିରେ ଟାଇଲ ବିଛାଇବା ଅର୍ଥ ଏହାର କ୍ଷେତ୍ରଫଳରେ ଟାଇଲ ବିଛାଇବା। ତ ଏହି ତଥ୍ୟଟି ଆମେ ଏଠି ଲେଖିବା ଯେ ଏହି ଆୟତାକାର ଜମିର ଟାଇଲ ବିଛାଯିବ ଅର୍ଥାତ୍ ଏହାର କ୍ଷେତ୍ରଫଳରେ ଟାଇଲ ବିଛାଯିବ। ତେବେ ପ୍ରଶ୍ନ ଅନୁସାରେ 1 ବର୍ଗ ମିଟର ଟାଇଲ ବିଛାଇବା ପାଇଁ 5 ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ ହେବ। ତ ଏଠି ଲେଖିଦେଲେ ଆମେ 1 ବର୍ଗ ମିଟର ଟାଇଲ ବିଛାଇବା ପାଇଁ ଖର୍ଚ୍ଚ ହୁଏ ସମାନ 5 ଟଙ୍କା। ବର୍ତ୍ତମାନ କ୍ଷେତ୍ରଫଳ ଯାହାକି 1 ଲକ୍ଷ ବର୍ଗ ମିଟର ଟାଇଲ ବିଛାଇବା ପାଇଁ ଖର୍ଚ୍ଚ ହେବ ସମାନ 1 ଲକ୍ଷ ଗୁଣ 5। 1 ଲକ୍ଷ ଓ 5ର ଗୁଣଫଳ ହେଉଛି 5 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା। ଅର୍ଥାତ୍ ସମୁଦାୟ ଆୟତାକାର ଜମିଟିରେ ଟାଇଲ ବିଛାଇବା ପାଇଁ 5 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ ହେବ। ଏଠାରେ ଅତ୍ୟକୁତ ଦେଇ ଲେଖିଦେବା, ଉକ୍ତ ଆୟତାକାର ଜମିରେ ଟାଇଲ ବିଛାଇବା ପାଇଁ ମୋଟ 5 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ ହେବ। ଏହାପର ପ୍ରଶ୍ନ 3 ନମ୍ବର, ଗୋଟିଏ ଆୟତାକୃତି ନଡ଼ିଆ ବଗିଚାର ଲମ୍ବ 100 ମିଟର ଓ ଚଉଡ଼ା 50 ମିଟର। ଯଦି ଗୋଟିଏ ନଡ଼ିଆ ଗଛ ଲଗାଇବା ପାଇଁ 25 ବର୍ଗ ମିଟର ଜାଗା ଆବଶ୍ୟକ ହୁଏ, ତେବେ ବଗିଚାରେ ସର୍ବାଧିକ କେତେ ନଡ଼ିଆ ଗଛ ଲାଗିପାରିବ? ଆସ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏହାର ଉତ୍ତର ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରିବା। ଏଠାରେ ଆୟତାକାର ବଗିଚାର ଲମ୍ବ ଯାହାକି ଦୈର୍ଘ୍ୟ ଦିଆହେଇଛି ଏବଂ ଚଉଡ଼ା ଯାହାକି ପ୍ରସ୍ଥ ତାହା ମଧ୍ୟ ଆମକୁ ଦତ୍ତ ଅଛି। ତ ପ୍ରଥମେ ଯେହେତୁ ଆମକୁ ଦୈର୍ଘ୍ୟ ଏବଂ ପ୍ରସ୍ଥ ଦତ୍ତ ଅଛି, ତେଣୁ ଆମକୁ ପ୍ରଥମେ ଏଥିରୁ କ୍ଷେତ୍ରଫଳ ଆମେ କାଢ଼ି ନେବା। ଆମେ ଏଠାରେ ଲେଖିନେବା, ଆୟତାକୃତି ନଡ଼ିଆ ବଗିଚାର ଲମ୍ବ ଅର୍ଥାତ୍ ଦୈର୍ଘ୍ୟ ସମାନ 100 ମିଟର, ଚଉଡ଼ା ଅର୍ଥାତ୍ ପ୍ରସ୍ଥ ସମାନ 50 ମିଟର। ବର୍ତ୍ତମାନ ଏହାର କ୍ଷେତ୍ରଫଳ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରିବା। କ୍ଷେତ୍ରଫଳ ସୂତ୍ରଟିକୁ ଲେଖିଦେବା, କ୍ଷେତ୍ରଫଳ ସମାନ ଦୈର୍ଘ୍ୟ ଗୁଣନ ପ୍ରସ୍ଥ। ଦୈର୍ଘ୍ୟ ସ୍ଥାନରେ ଆମେ ଲେଖିଦେବା 100 ମିଟର ଏବଂ ପ୍ରସ୍ଥ ସ୍ଥାନରେ ପ୍ରସ୍ଥର ମୂଲ୍ୟ ପକାଇବା 50 ମିଟର।
बर्तमान 100 एवं 50 गुणफल हो 5000 वर्गमीटर। तेणु आम एणा पाइले जे आयतकार नड़िया बगीचार क्षेत्रफल हो 5000 वर्गमीटर। बर्तमान से एठारे कही गोटे नड़िया गछ लगेवा 25 वर्गमीटर जगह आवश्यक हुए। आम ये लिखिदेव नड़िया बगीचार एक नड़िया गछ लगेवा 25 वर्गमीटर जगह आवश्यक हुए। यह आम टे उल्टे लिखिदे कहीं आम क्षेत्रफल रु गछ संख्या काढ़ा। तेणु प्रथम क्षेत्रफल एवं पर गछ संख्या लिखिना। 25 वर्गमीटर जगार नड़िया गछ लगे समान 1 टी। 5000 वर्गमीटर जगार नड़िया गछ लगे समान 5000 बाय 25। बर्तमान 5000 को 25 रे काटिदेबा। 25 दूने 50, 25 शून्य शून्य 25 शून्य शून्य। बर्तमान उत्तर बाहरी गला 200 अर्थात 200 टी गछ लगी पार। अतएव लिखिना नड़िया बगीचार मोट 200 टी नड़िया गछ लगी पार। वर्तमान परवर्ती प्रश्न 4 नंबर। तले दिया जाइथिबा आकृति गुडी को आयताकृति क्षेत्र रे विभक्त करी क्षेत्रफल निर्णय कर। समस्त माप मीटर एकक रे दिया जाई अछि। एठारे से कहिछि जे तले जो चित्र सब रहिछि एही चित्र गुडी को आमे आयताकृति क्षेत्र रे आगे भाग करिबा तापरे एहारो क्षेत्रफल निर्णय करिबा। चलो एबे करिबा। देखो पिला माने क नंबर रे एही चित्रटी देई अछि। टिके भल भाव बुझापी चेष्टा करिबो पिला माने। यह अति सहजरे बाहरी जीव। तो यही चित्र को आमे 4टी आयत क्षेत्र रे विभक्त करिबा। जो भले एठी विभक्त होईछि। प्रथम आयत क्षेत्रटी ए, द्वितीय आयत क्षेत्रटी बी, तृतीय आयत क्षेत्र सी एवं चतुर्थ आयत क्षेत्र होछि डी। तो एही भली 4 भाग रे विभक्त करी हमर प्रत्येक आयत क्षेत्रर क्षेत्रफल निर्णय करिबा। देखो एठारे एही भागटी 1 मीटर, एही भागटी 3 मीटर, एही भाग 2 मीटर, एही भाग 2 मीटर, एही भागटी 4 मीटर, एही भागटी 3 मीटर, एही भागटी 4 मीटर। मात्र एठी टिके भूल अछि पिला माने ए तळ भागटी से देई नाही, किंतु ए तळ भागटी न देले आमे उत्तर काढी परिबा नाही। तो ए तळ भागटी हेबो 3 मीटर। तेणु आमे एठी लिखि देले 3 मीटर। वर्तमान एहार प्रत्येक आयत क्षेत्रर क्षेत्रफल को काढिबा एवं समस्तंकर समष्टि काढी देबा परे आमे संपूर्ण क्षेत्रर क्षेत्रफलटी पाई जिबा। जो भली आमे भाग करिथिले से अनुसार आयत क्षेत्र गुडी को आमे भाग करि नेबा। प्रथम आयत क्षेत्र देखो पिला माने एठी हम प्रथम आयत क्षेत्र तयारी हैला जहार ना होची ए। वर्तमान आमे द्वितीय आयत क्षेत्र को गार टाणी देबा जहाला बी एवं तृतीय आयत क्षेत्र से होची सी एवं 4 नंबर आयत क्षेत्र से होची डी। प्रथमे ए रो क्षेत्रफल काढिबा। देखो ए रो दैर्घ्य 4 मीटर, प्रस्थ 3 मीटर। तेणु ए रो क्षेत्रफल होई जिवो दैर्घ्य गुणन प्रस्थ 4 मीटर गुणन 3 मीटर। 4 और 3 रो गुणफल समान 12 वर्गमीटर। तो प्रथम आयत क्षेत्र ए रो क्षेत्रफल हेउछि 12 वर्गमीटर। वर्तमान आमे द्वितीय आयत क्षेत्र बी रो क्षेत्रफल निर्णय करिबा। यही आयत क्षेत्रटी होउछि बी आयत क्षेत्र। तो बी रो हमको दैर्घ्य आ प्रस्थ काढिबार अछि। हमको दैर्घ्य जणा अछि 4 मीटर। वर्तमान प्रस्थ काढिबा पई हेले प्रथमे ए संपूर्ण बाहुटी रो हमको क्षुद्र बाहुटी वियोग करिया पई होबो। संपूर्ण बाहुटी अछि 4 मीटर आ ए छोटिया बाहुटी दत्त अछि 3 मीटर। तो 4 रु 3 आमे वियोग करि देबा। 4 रु 3 वियोग कले हेउछि 1 मीटर। तो वर्तमान बी रो आमे प्रस्थ पाई गेले 1 मीटर आउ हमको दैर्घ्य पूर्वरु जणा अछि जहा कि होछि 4 मीटर। वर्तमान एहार क्षेत्रफल हेबो 4 मीटर गुणन 1 मीटर समान 4 वर्गमीटर। वर्तमान आमे द्वितीय आयत क्षेत्र बी रो मध्य क्षेत्रफल निर्णय करि सारिले। वर्तमान जिबा सी पाखको। सी रो क्षेत्रफल वर्तमान निर्णय करिबा। एही क्षेत्रटी होछि सी। एही आयत क्षेत्रटी होउछि सी आयत क्षेत्र। ए सी आयत क्षेत्रर हमको दैर्घ्य जणा अछि 3 मीटर
प्रस्थ जना अच्छी 2 मीटर जहाँकि पूर्वर दत्त अच्छी तो यह अति सहजरे आम काटिदेबा यार क्षेत्रफल 3 मीटर गुणन 2 मीटर समान 6 वर्ग मीटर। सी रे आम क्षेत्रफल पाईगले 6 वर्ग मीटर। वर्तमान आम देखा डी आयत क्षेत्र यहीटा को टिके पिला माने बुझिया चेष्टा करिवो यार दैर्घ्य आ प्रस्थ किपरि निर्णय करा जाउछि कारण यार कौनसी भी दत्त नहीं आमको उभयटी निर्णय करने हेब। तो यही डी आयत क्षेत्रटीर आम उभय दैर्घ्य और प्रस्थ को वर्तमान निर्णय करवा। प्रथमे देख दैर्घ्य प्रथमे यो चिन्हटी दिहला यही संपूर्ण बाहुटीर दैर्घ्य होउछि आमर 3 मीटर जहाँ आम लिखिले तले। तो यही 3 मीटर रु आमको प्रथमे दत्त अच्छी जो 2 मीटर सेठू से खंडटी को काटी अलग करदेबा अर्थात वियोग करदेबा। तो 3 मीटर रु 2 मीटर वियोग होगापर आमको से क्षुद्र खंडटी मिलला जार दैर्घ्य होउछि 1 मीटर। देख ये चिन्ह होता बाहुटी होउछि 1 मीटर। वर्तमान आम यही चिन्हित होता बड़ बाहुटी पुणी से क्षुद्र बाहु पाखु जीवा। तो ये संपूर्ण बाहुटी दत्त अच्छी आमर 3 मीटर। ये 3 मीटर रु आम जदि क्षुद्र बाहुटी काटिदेबा तेबे आम ता परवर्ती बाहुटू पाइबा काटिदेबा परे हैला 2 मीटर। तो वर्तमान देख मु चिन्हउथिबा अंशटी होउछि 2 मीटर। वर्तमान बी आयत क्षेत्र दैर्घ्य को देख यह होउछि 4 मीटर। यही 4 मीटर रु आम जो क्षुद्र अंश 2 मीटर पाइथिले ताहाको वियोग करदेले आम डी रो दैर्घ्य पाई परिबा। तेणु एठारे 4 मीटर वियोग पाइथिबा क्षुद्र अंश 2 मीटर समान वियोग करदेले पाइगले आम डी रो दैर्घ्य 2 मीटर। वर्तमान डी रो प्रस्थ निर्णय करिबा। देखो सी रो हमर प्रस्थ होउछि 2 मीटर। तो सेठी आनिके आमे लिखिदेले एई क्षुद्र अंशटी 2 मीटर एवं पूर्वरु डी रो आउ छोट अंशटी दत्त अछि 1 मीटर। तेणु दुईटी मिसी जिबा परे एहार प्रस्थ होय गला 3 मीटर। तो वर्तमान आमे डी रो दैर्घ्य पाइगले 2 मीटर प्रस्थ पाइले 3 मीटर। वर्तमान एहार क्षेत्रफल हेबो 2 गुणन 3 समान 6 वर्ग मीटर। वर्तमान ये आम 4टी जाक आयत क्षेत्र क्षेत्रफल निर्णय कर सारीचु। वर्तमान यही 4टी सारा आयत क्षेत्र क्षेत्रफल को जदि आम जोग करदे संपूर्ण क्षेत्र क्षेत्रफल पाइपर। वर्तमान दत्त दि जाइथिबा संपूर्ण क्षेत्रटीर क्षेत्रफल समान ए रो क्षेत्रफल जो बी रो क्षेत्रफल जो सी रो क्षेत्रफल जो डी रो क्षेत्रफल। तो यही 4टी आयत क्षेत्र क्षेत्रफल वर्तमान जोग करदेबा प्रत्येक जगार प्रत्येक मूल्य को वर्तमान बसाइबा। तले समान चिन्ह दे ए रो क्षेत्रफल लिखिबा 12 वर्ग मीटर युक्त बी रो क्षेत्रफल 4 वर्ग मीटर युक्त सी रो क्षेत्रफल 6 वर्ग मीटर युक्त डी रो क्षेत्रफल 6 वर्ग मीटर। वर्तमान समस्त क्षेत्रफल आम एठारे जोग आकार रे लिखिदेले। वर्तमान समस्त को जोग करिबा 12 4 रो जोगफल 16 16 और 6 रो जोगफल 22 और 22 और 6 रो जोगफल होउछि 28। तो वर्तमान ए समस्त जोगफल बाहरिला 28 वर्ग मीटर। अर्थात दिया जाइतिबा क्षेत्रटीर क्षेत्रफल होउछि 28 वर्ग मीटर। वर्तमान आम द्वितीय आकृतिर क्षेत्रफल निर्णय करिबा। पिला माने देख एही आकृति को यहाँ को आम आयत क्षेत्र में भाग भाग करी यार क्षेत्रफल निर्णय करिबा। देख पिला माने आपको भाग भाग करने प्रथम यहीठारे एक रेखांकन कले जहाँद्वारा आमको एक आयत क्षेत्र मिलला। यार नाम देवा ए। पुनश्च यह कड़े आउ एक रेखाखंड अंकन करवा सेठी जो आयत क्षेत्र मिल तार नाम देवा बी और सबुठार ऊपर थिबा आयत क्षेत्र नाम आम देवा सी। वर्तमान आमर 3टी आयत क्षेत्र सृष्टि हैला। एगुड़िक हैला ए बी और सी। वर्तमान ए रो क्षेत्रफल निर्णय करिबा। आस एठारे ए रो क्षेत्रफल को आम निर्णय करिबा। आम प्रथम एठा लिखि नबा ए आयत क्षेत्र रो क्षेत्रफल समान देख एठारे पिला माने ए रो
आमको प्रस्थ जना अच्छी जहाँकि 1 मीटर किंतु आमको तार दर्घ्यटी निर्णय करने पड़ो। देख पिला माने ए और बी आयतक्षेत्र मध्य फांका स्थान टी आम एक काल्पनिक रेखा द्वारा जोड़ा। यह द्वारा मझिरे आम एक आयतक्षेत्र पाइले तेज आयतक्षेत्र विपरीत बाहु सामान तेणु यार दैर्घ्य जेहेतु एठारे 2 मीटर अच्छी तेणु यार दैर्घ्य भी 2 मीटर हेब। तो बर्तमान आम जानीपारे जे ए आयतक्षेत्र दैर्घ्य 2 मीटर और यार क्षेत्रफल सामान 2 मीटर गुणन 1 मीटर सामान 2 वर्ग मीटर। वर्तमान बी आयतक्षेत्र क्षेत्रफल निर्णय करवा। बी आयतक्षेत्र आमको दैर्घ्य और प्रस्थ जना अच्छी यार दैर्घ्य 2 मीटर प्रस्थ 1 मीटर तेबे यार क्षेत्रफल 2 मीटर गुणन 1 मीटर सामान 2 वर्ग मीटर। वर्तमान आम ए और बी दुईटी आयतक्षेत्र क्षेत्रफल पाई पारिलु। एबे आमे तृतीय आयतक्षेत्र सी रो क्षेत्रफल को निर्णय करिबा। सी रो आमको दैर्घ्य और प्रस्थ निर्णय करने हेबो। एठार आमको सी रो दैर्घ्य जना अच्छी केवल आमको प्रस्थ काढ़ापी हेबो। प्रथमे आम लिखि नबा सी आयतक्षेत्र क्षेत्रफल समान। देख पिला माने एठारे दैर्घ्यटी आमको जना अच्छी जहाँकि 5 मीटर एवं यार प्रस्थ निर्णय करवा। प्रस्थटी हेबो देख पिला माने आमको यही प्रस्थटी काढ़ार अच्छी मात्र ये संपूर्ण अंशटी होउछि 3 मीटर। ये संपूर्ण अंश रो आमे जदि एतिके अंश को बाद देबा तेबे आमे क्षुद्र अंशटी पाई परिबा। तेणु संपूर्ण अंशटी 3 मीटर एठु एतिके होउछि 2 मीटर आको बाद देले ए अंशटी पाइबा। तेणु 3 मीटर 2 मीटर वियोग हो गले होउछि 1 मीटर। 1 मीटर होउछि सी आयतक्षेत्र प्रस्थ। वर्तमान दैर्घ्य गुणन प्रस्थ 5 गुणन 1 समान 5 वर्ग मीटर। वर्तमान आम ए बी सी तीनोटी सारा आयतक्षेत्र क्षेत्रफल पाइलु। वर्तमान संपूर्ण क्षेत्रटीर क्षेत्रफल समान ए रो क्षेत्रफल प्लस बी रो क्षेत्रफल प्लस सी रो क्षेत्रफल। तेणु आम लिखिदेले संपूर्ण क्षेत्रटीर क्षेत्रफल समान ए रो क्षेत्रफल 2 वर्ग मीटर प्लस बी रो क्षेत्रफल 2 वर्ग मीटर प्लस सी रो क्षेत्रफल 5 वर्ग मीटर। तीनोटी जाक को आम वर्तमान लिखिदबा 2 वर्ग मीटर प्लस 2 वर्ग मीटर प्लस 5 वर्ग मीटर। तीनोटीर योगफल होउछि 9 वर्ग मीटर। वर्तमान आमे प्रत्येक उत्तर दे लिखिदबा संपूर्ण क्षेत्रटीर क्षेत्रफल होउछि 9 वर्ग मीटर। पिला माने आजिर एही गणित सहित 138 पृष्ठारे थिबा क्षेत्रफल संबंधी समस्त प्रश्न गुड़िकर उत्तर आम आज निर्णय कले। जदि आजिर क्लासटी तुम मानक भल लगी थाए तेबे आम चाटशाली चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करिवो एवं तुमर मतामत कमेंट जरिया मते निहाती जणाइबो। पुणी देखा हबो आउ एक नया अध्याय एवं नया वीडियो सहित। आज पई एतिकी धन्यवाद।